السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشہ عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانے، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر واقع شاپنگ مال میں خوفناک آتش زدگی ہوئی ہے۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پلازے کے اطراف میں دھوئیں کے بادل اور فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیاں اور 44 اہلکار آگ پر قابو پانے میں مصروف رہے، جبکہ شاپنگ مال میں واقع دکانوں کے مالکان سامان باہر نکالنے میں مصروف رہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم ترین خبر ہے یہ، جس کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر واقع شاپنگ مال میں خوفناک آتش زدگی پیش آئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں، زین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین اگر سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا۔ 9 بجے کے قریب ماڈل ٹاؤن میں شاپنگ مال میں جو ہے ایک نجی شاپنگ جی بالکل ماڈل ٹاؤن میں واقع نجی شاپنگ مال میں جو صبح آگ لگنے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ 9 بجے کے قریب جو ہے وہ اس شاپنگ مال میں آگ لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے جو ہے وہ پوری عمارت کو جو اپنے قابو میں لیا تھا۔ ابتدائی طور پر اس شاپنگ مال کے جو ہے وہ 3rd فلور پر آگ لگی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہی اس آگ نے جو ہے وہ پھیلتی گو اور تینوں فلور کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کی جانب سے موقع پر پہنچ کے 11 گاڑیاں جو ہے وہ اس ریسکیو آپریشن میں جو ہے کہ 44 اہلکار جو ہے وہ اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے۔ اب اس وقت جو ہے وہ آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا، جبکہ آگ کے 22 کروڑوں روپے مالیت کا جو نقصان ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ جتنی بھی دکانیں تھیں وہ اس وقت جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ میرے پیچھے اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، ریسکیو اہلکاروں کو جو ہے وہ پہلے اندر جانے میں مشکلات درپیش تھی، جس کے باعث دوسری طرف سے جو ہے وہ ریسکیو کی جانب سے جو ہے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ مکمل طور پر جو یہ گراؤنڈ فلور کے مناظر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور گراؤنڈ فلور پر بھی جو سب کچھ ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ کوئی بھی حالت جو ہے وہ اس پوری بلڈنگ کے جو اپنی اصلی حالت میں جو موجود نہیں رہی، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شاپنگ مال کے بیسمنٹ میں جو گاڑیاں بڑی تعداد میں جو ہے وہ موجود تھیں، جبکہ گاڑیوں کو جو ہے وہ بحفاظت نکال لیا گیا، جبکہ شہری جو ہے وہ جو بھی اندر پھنسے ہوئے تھے جو ان کو بھی جو بحفاظت جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔ کوئی جو بھی نقصان ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ ایک جو لواحق متاثرین ہیں جن کی دکان تھی اس شاپنگ مال کے اندر، کپڑے کی بیسیکلی یہ شاپنگ مال تھا جہاں پر زیادہ تر کپڑوں کی دکانیں تھی، متاثرین ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے گا سر، کتنا کا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ اور سر نقصان تو ہمارا کروڑوں میں ہوا ہے۔ ہم سی ایم پنجاب سے گزارش کرتے ہیں، مریم نواز سے، ہمارا یہ ازالہ کیا جائے نقصان کا، اور یہ سارے دکاندار سارے دکاندار جو سے نا وہ سارے چھوٹے دکاندار ہیں، اور یہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، اور یہ سارا نقصان آپ دیکھیں آپ کے سامنے سارا کلیکٹ ہو گیا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں اپنے ٹریڈر یونین سے بھی، اور ہم اب سی ایم مریم نواز سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ دکاندار کے سب کی امداد کی جائے اور سب کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ آپ کا ابھی تک کتنا نقصان ہوا ہے؟ سر ابھی تک تو اندر جا نہیں رہے، انتظامیہ جانے نہیں دے رہی۔ آپ کے سامنے اگر یہاں سے یہ صورتحال نظر آپ کو آ رہی ہے تو پھر اندر کی بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ تو کتنی مالیت کا سامان آپ کی دکان میں موجود تھا؟ سر دیکھیں، میرے کزن کی شاپ ہے، وہ اس میں 35-36 لاکھ روپے کا، اسی طرح میری شاپ میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ جولری ہماری ہے، کافی امپورٹ سامان ہے، سامان تو سارا آپ کے سامنے ہے۔ جی بالکل، لاکھوں روپے مالیت کا نقصان، کروڑوں مالیت کا نقصان ہوا ہے۔ سر آپ بتائیے گا کتنا آپ کی یار دکان یہاں پر ہے تو کتنا نقصان آپ کا ہوا ہے؟ میں تو ابھی بھی آیا ہوں، مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا ہے، تو میں ابھی آگے دیکھ رہا ہوں، تو پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہو گیا کہ ہو کے گیا ویسے، کیونکہ ہمارا تو سارا کام ہی اس پہ تھا، گھر کا سسٹم ہی اس پہ چل رہا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کرے۔ سر کتنا نقصان، کتنے آپ کی دکان میں کتنی مالیت کا جو ہے وہ سامان موجود تھا؟ سر لاکھوں روپے کا اسٹاک تو اندر پڑا ہوا تھا، ہمارا ہوزری کا کام ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ باقی نظر نہیں آ رہا کچھ، جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے اس وقت بہت برے حالات ہوئے ہوئے ہیں۔ سر اگر اس بلڈنگ کو دیکھا جائے تو اس بلڈنگ کی وینٹیلیشن کے لیے بظاہری طور پر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک فلیکس لگا ہوا ہے، ایڈورٹائزنگ کا فلیکس لگا ہوا ہے، اس کو کھڑکیاں یہاں پر موجود تھی جس کے اوپر یہ فلیکس لگا دیا گیا ہے۔ کھڑکیاں ہوتی ہیں وینٹیلیشن کے لیے، لیکن یہ سارا جو ایسے کور کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے آگ کیوں لگی، کیسے لگی؟ سر اب وینٹیلیشن کی بات کریں، پیس کے اندر نہ تو آپ کو آگ بجھانے کے کوئی آلات نظر نہیں آئیں گے، اگر ہوں گے بھی وہ بھی سارے ایکسپائری کتنی دفعہ کہا گیا۔ پیس مینجمنٹ کی اپنی مرضی ہے، جس طرح کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جن سے ہمارا فائر ہاؤس والا دروازہ ہے وہ بھی اس وقت سیل کیا ہوا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا نظر آ رہا ہے۔ باقی آپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، سب کے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا بالکل، شہریوں کو جو ہے وہ لاکھوں روپے مالیت کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ سر آپ بتائیے گا، آپ کی بھی دکان تھی، کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ سر ہمارا تقریباً کوئی 35 سے 40 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، اور ہم تو اجڑ گئے ہیں۔
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پیس تو ایسے آگ لگتی ہے جیسے پورے اپنے لاہور میں اتنے مالز ہیں, وہاں کیوں نہیں آگ لگتی؟ یہ پیس ہی کیوں لگتی ہے آگ؟ کیا اس کی مینجمنٹ نہیں ٹھیک یا کیا کرتے ہیں یہ؟ آپ دیکھیں پیس 1 میں 2-3 دفعہ آگ لگ چکی ہے, ادھر ہو چکا ہے ایسا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا پلاننگ ہے؟ ان لوگوں کی پلاننگ ہے کچھ ہوتی ہے؟ یہ لاہور میں ٹھیک ایک ہی ہے مال رہ زین, گیا ساتھ پیس. ہی موجود رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مدثر حسین نے. مدثر بتائیے گا کہ آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی اب تک؟ سامنے نہیں آ سکی, لیکن یہ آتش زدگی جو ہے وہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے. اور یہ آگ لگنے کا پیس مال میں پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی واقعات پیش آ چکے ہیں, لیکن حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے, جس کی وجہ سے آج پھر آگ لگی ہے اور کروڑوں روپے جو مالیت کا سامان ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا. تقریباً 12 سے 15 گاڑیاں ریسکیو کی ٹیموں نے جو ہے وہ آگ پر قابو پایا ہے, لیکن اب جو صورتحال ہے ہر طرف دھواں ہی ہے اور جو کروڑوں کا سامان تھا وہ جل کر جو ہے وہ راکھ ہو چکا ہے اور تاجروں کا جو ہے وہ کروڑوں مالیت کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے. اگر دیکھا جائے تو ضلع انتظامیہ کی طرف سے, سول ڈیفنس کی طرف سے جو ہے کوئی بھی جتنے بھی لاہور میں بڑے بڑے پلازے ہیں وہاں پر کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کروائے جاتے. اب ہوگا یہ کہ جو سول ڈیفنس کی ٹیمیں ہیں, ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں, وہ صرف اپنی دیہڑیاں لگانے کے لیے آئیں گی, پیسے بڑھانے کے لیے آئیں گی اور بڑے بڑے جو شاپنگ مال ہیں وہاں پہ دیہڑیاں لگائیں گے اور حفاظتی انتظامات وہاں پر نہیں کیے جائیں گے. جو آگ کے واقعات ہیں وہ جاری رہیں گے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جو آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آئے. اس سے پہلے بھی اس طرح شاپنگ مال میں اور بڑے بڑے پلازوں میں آتشزدگی کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. جیسے جیسے جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا, ایسے ایسے آگ لگنے کے جو واقعات ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اور شارٹ سرکٹ جو ہے وہ زیادہ تر ان آگ لگنے کی جو وجوہات بنتے ہیں, خاص طور پر جب لوڈ شیڈنگ ہوگی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, یو پی ایس کی وجہ سے اور دیگر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو آگ جو ہے وہ بڑے بڑے پلازوں میں لگتی ہے اور اس کے بعد کروڑوں کا جو مالیت کا سامان ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں, جو سول ڈیفنس کی ٹیمیں ہیں, وہ وہاں پر حفاظتی انتظامات نہیں کرواتی ہیں. وہ صرف اپنی منتریاں وہاں سے لیتی ہیں اور منتریاں لینے کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں, اور جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ آگ لگتی ہے. آگ لگنے سے نہ صرف جو ہے وہ قیمتی سامان کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ہوتا ہے, بلکہ اس سے جو قیمتی جانوں کا جو ہے وہ بھی ضیاع ہوتا ہے. اور اس حوالے سے جب تک جو انتظامیہ ہے جب تک وہ ہوش کے ناخن نہیں لے گی, تب تک یہ اس طرح کے جو آگ کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور بھی جو ہے اس طرح یہ آگ کا واقعہ پیش ہے. آج جو ہے وہ ایم پی او آفس جو ہے وہ پولیس کا, وہاں پر جو ہے اس طرح آگ کا جو ہے واقعات پیش آئے ہیں. اس حوالے سے جب تک اس کی پراپر انکوائری نہیں ہوگی کہ آگ کیسے لگی ہے, جب تک جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, تب تک اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے مدثر, ساتھ ہی موجود رہیے گا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اطلاع صبح گھر میں ملی, فوری طور پر پہنچے تو سامان سارا جل چکا تھا اور زندگی بھر کی جمع پونجی جل کر راکھ ہو گئی تھی. ایک دکاندار کا کہنا ہے کہ رات کو ہی 10 لاکھ روپے کا سامان منگوایا تھا. آگ لگ گئی ہے. اب یہ دیکھیں سارے مزدور تقبہ یہاں پہ جتنا بھی دکاندار ہے سارا مزدور, اور یہ کروڑوں کا نقصان ہے, لاکھوں میں نہیں ہے, ہزاروں میں نہیں ہے, یہ کروڑوں کا نقصان. گارمنٹس آپ کے یہ سامنے آپ دیکھیں, یہ گارمنٹس ہمارا ختم ہو گیا ہے, جولری ہماری بڑی مہنگی پڑی ہوئی ہے, بیلٹس پڑی ہوئی ہیں, اور یہ اوپر سارا اب یہ صورتحال سمجھ نہیں لگ رہی. سر فرسٹ فلور پہ میرے کاؤنٹر ہیں, 3 کاؤنٹر تھے اور پچھلے ہم 18 سال سے ادھر بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی مشکل سروائیو ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کچھ تو معیشت حالات ہے ویسے ہی ہیں ملک کے, کچھ مال کے بھی حالات اس طرح کے چل رہے تھے کہ پیس مینجمنٹ ہمارے ساتھ اتنی کوآپریٹو نہیں تھی. ٹھیک ہے, جس طرح بھی بڑی مشکل سے ہم سب بھائی جو چھوٹے بزنس مین بیٹھے تھے سروائیو کر رہے تھے, بڑی مشکل سے ہم اپنا گزارا کر رہے تھے, بچوں کی روٹی پوری کر رہے تھے. لیکن یہ دیکھیں کہ اب یہ جو صورتحال ہے ہمیں نہیں لگ رہا کہ اب یہ پھر سے بحال ہوگا. آپ دیکھیں جیسے فلیکسیں لگی ہوئی ہیں, کھڑکیاں ساری بند کر دی گئی ہوئی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پہ سیلنگ میں فائر تھی, اور جو ہے جس کی وجہ سے پوری بلڈنگ میں دھواں بھر گیا, اور جس کی وجہ سے کافی پینک کریٹ ہوا. اور جو ہے دھواں بھرنے کی وجہ سے جو فائر فائٹر بھی تھے انہوں نے لیٹسٹ گیجٹ یوز کرتے ہوئے SCBA اور تھرمل امیجنگ کیم یوز کرتے ہوئے, جو کہ ویزیبلٹی دیتا ہے اسموک میں, اور جو ہے ٹمپریچر بتاتا ہے بلڈنگ کے اندر, جہاں جہاں ٹمپریچر رائز ہوا تھا وہاں پہ بہت ایگریسو فائر فائٹنگ کرتے ہوئے اس آگ. ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر واقع پلازے میں آتش زدگی کا یہ واقعہ ہے اور ڈی سی لاہور رافیہ حیدر موقع پر پہنچ گئی ہیں. ڈی سی لاہور نے امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اکبر. عمران, یہ بتائیے گا کہ کیا شاپنگ مال میں موجود شاپ کی انشورنس ہوتی ہے؟
हाँ जी बिल्कुल, माल्टोन लिंक रोड पर इमारत में आतिशबाजी हुई है, जिस पर डीसी लाहौर हाफिज हैदर ने वहाँ पर मौका पर पहुंची हैं और उनका ये कहना है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वजह से रेस्क्यू एहलकार और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, जबकि रेस्क्यू और फायर फाइटर्स की कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका जा रहा है और कूलिंग का अमल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इमारत में धुआं भर चुका है और जिसे धुआं निकालने का अमल भी जारी है। डीसी लाहौर का ये कहना है कि आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। जी ठीक है। शहर में बढ़ते हुए आतिशज़दगी के वाक़यात और एक हफ्ते में 7 बड़े कारोबारी मराकज़ में आतिशज़दगी हुई है। शालेम मार्केट और अनारकली बाज़ार में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए हैं। LDA की मुश्तरका टीम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। मरकज़ी शाहराहों पर वाक़े प्लाज़ों में आग बुझाने के आलात की चेकिंग ना की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन, बताइएगा कि आग पूरी बिल्डिंग में लगी है या सिर्फ एक फ्लोर पर लगी है और अब तक कितना नुकसान हो चुका है? ज़ैन से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक हफ्ते में 7 बड़े कारोबारी मराकज़ में आतिशज़दगी हुई है। शालम मार्केट और अनारकली बाज़ार में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ज़ैन। ये हुकूमती अदारों की मुबजना गफलत और लापरवाही की वजह से शहर लाहौर में आतिशज़दगी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के 7 बड़े कारोबारी मराकज़ में ये आतिशज़दगी के वाक़यात रूनुमा हुए। LDA की मुश्तरका टीम अपनी जिम्मेदारी संभालने में नाकाम नजर आ रही है। मरकजी शाहराहों पर वाक़े प्लाजों में आग बुझाने के आलात की चेकिंग ही नहीं की गई। यही वजह है कि शाह आलम मार्केट में 2 मुकामात पर, अनारकली बाजार में 2 मुकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात रूनुमा हुए। इसी तरह मुस्लिम टाउन में एक वर्कशॉप और मॉडल टाउन लिंक रोड पर निजी प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ। लाहौर न्यूज़ की तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि गुज़िश्ता 3 बरसों में LDA की टीमों ने किसी एक प्लाजे का भी दौरा नहीं किया। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर 3 साल कब LDA की टीमों ने विजिट किया था। इसके अलावा 2017 के बाद किसी प्लाजे को फायर फाइटिंग सिस्टम की चेकिंग पर भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। शोभा टाउन प्लानिंग ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तमीर के दौरान भी फायर सेफ्टी आलात का जायजा नहीं लिया। यही वजह है कि गुलबर्ग, अलामा इकबाल टाउन, गार्डन टाउन और जौहर टाउन में 237 से ज़ायद प्लाजों में फायर हाइड्रेंट सिस्टम गैर फाल है। साबिक पंजाब हुकूमत ने सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और LDA अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी और कमेटी की तश्कील के बाद ताहाल जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं हो सके। मौजूदा सूरत हाल में ये स्पेशल कमेटी फायर सेफ्टी आलात चेक करने की बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इस पूरे मामले पर LDA इंतजामिया का मौक़िफ़ लिया गया तो उनका ये कहना है कि रेस्क्यू और दीगर अदारों के साथ प्लाजों की चेकिंग की जाएगी और प्लाजों को पाबंद किया जाएगा कि फायर सेफ्टी और फायर हाइड्रेंट सिस्टम को फाल किया जाए। जबकि LDA के शोभा टाउन प्लानिंग हुकाम का कहना है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इजरा के वक्त फायर सेफ्टी आलात की चेकिंग की जाती है, ताहम तमाम इमलाक को पाबंद किया जा रहा है कि इमरजेंसी आलात की तनसीब को यकीनी बनाएं। ठीक है ज़ैन, ये भी बताएं कि पहले भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी स्टेप्स क्यों नहीं लिए जाते? अब बुनियादी तौर पर तो जो इदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में जो फायर सेफ्टी आलात हैं, जिसमें आग बुझाने के आलात, इसके अलावा बर वक्त पानी की फराहमी और जो इमरजेंसी स्टेयर्स हैं उसको यकीनी बनाएं। लेकिन इदारों की मुबजना गफलत और कोताही की वजह से और मुबजना तौर पर मिली भगत की वजह से इन तमाम जो सेफ्टी मेजरमेंट हैं इसके ऊपर पाबंदी नहीं की जाती, जिसकी वजह से आए रोज शहर में ये आग लगने ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, ज़ैन अली मौजूद थे हमारे साथ, ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद थे, इमरान अकबर और ज़ैन अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। आपको बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ का आवाम से किया वादा चंद ही घंटों में पूरा। म्यू हस्पताल एमरजेंसी में नए स्ट्रेचर और बेड्स पहुंचा दिए गए। गुज़िश्ता रात मरियम नवाज़ के दौरा के मौका पर मरीज़ों और लाहिकीन ने मुतालिबा किया था। वज़ीर आला की हिदायत पर नमाज के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का आवाम से किया वादा
चंद ही घंटों में पूरा हो गया है। म्यू अस्पताल एमरजेंसी में नए स्ट्रेचर और बेड्स पहुंचा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रात मरियम नवाज़ के दौरा के मौका पर मरीजों और लाहिकीन ने मुतालिबा किया था। वज़ीर आला की हिदायत पर नमाज के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई है और म्यू अस्पताल एमरजेंसी में नए स्ट्रेचर और बेड्स पहुंचा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रात मरियम नवाज़ के दौरा के मौका पर मरीजों और लाहिकीन ने मुतालिबा किया था। वज़ीर आला की हिदायत पर नमाज के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई है और वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अवाम से किया वादा चंद ही घंटों में पूरा। म्यू अस्पताल एमरजेंसी में नए स्ट्रेचर और बेड्स पहुंचा दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़। LWMC वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में मुतहरिक। CEO बाबर साहब दीन का ठोकर वर्कशॉप का दौरा और ड्राइवर्स की हाजिरी और फील्ड में निकलने वाली गाड़ियों के औकात कार को चेक किया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। बिल्कुल, शहर में सफाई सुथराई का मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। LWMC वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में मुतहरिक नजर आ रहे हैं। CEO LWMC बाबर साहब दीन ने शहर भर में हंगामे दौरे किए हैं, जिसमें सुबह सवेरे ठोकर वर्कशॉप का अचानक दौरा किया गया। ड्राइवर्स की हाजिरी और फर्स्ट शिफ्ट में निकलने वाली गाड़ियों के औकात कार को चेक किया गया। तमाम ऑपरेशनल गाड़ियों के रूट्स फ्रंट स्क्रीन पर चस्पा करने की हिदायत कर दी गई, जबकि रिपेयरिंग के लिए आने वाली गाड़ियों को फौरी तौर पर ठीक करके वापस फील्ड में भिजवाने की भी हिदायत की गई है। बैकअप के लिए खड़ी गाड़ियों का मुआयना किया गया। CEO LWMC बाबर साहब दीन का कहना है कि मुतल्लिका ड्राइवर्स और फ्लीट मैनेजर्स ऑपरेशनल गाड़ियों की रोजाना इंस्पेक्शन यकीनी बनाए। सफाई ऑपरेशन में कोताही की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के तर्जुमान रफ़ीउल्लाह का तबादला। रफ़ीउल्लाह की खिदमात 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सपुर्द। रफ़ीउल्लाह को PCB में ग्रेड 20 के ओहदे पर तैनात किया जाएगा। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के तर्जुमान रफ़ीउल्लाह का तबादला और रफ़ीउल्लाह की खिदमात 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सपुर्द। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन। हसन अगर सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान रफ़ीउल्लाह का तबादला कर दिया गया है। रफ़ीउल्लाह की खिदमात 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सपुर्द कर दी गई है। रफ़ीउल्लाह को ग्रेड 20 के ओहदे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किया जाएगा और दरअसल जो मोहम्मद रफ़ीउल्लाह है ये मुतअद्दिद वज़राए आला है, उनके तर्जुमान, उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिस के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इनकी खिदमात को देखते हुए इनकी खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेने का फैसला किया था, जिसके लिए वफाक को जो है वो समरी भिजवाई गई थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मंजूरी के बाद इनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह जो है आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज्वाइनिंग की। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। स्कूलों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। स्कूलों की मॉनिटरिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। तमाम AEOs अपनी तहसील में कायम स्कूलों का रोज़ाना की बुनियाद पर विजिट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने खुसूसी हिदायत कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से स्कूलों की सख्त मॉनिटरिंग जो है उसका करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से AEOs को ड्यूटियाँ दे दी गई हैं कि रोज जो 50 AEOs हैं वो 50 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का विजिट करेंगे और वहाँ पर सहूलियात का जायजा लेंगे और तमाम का जो इंतजाम है माली उसके साथ साथ तालीमी जो कारकर्दगी है उसका भी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके जायजे के बाद रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की सरबराह को पेश की जाएगी। जहाँ पर कोताहियाँ होंगी उस स्कूल सरबराह के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दे दी गई है जो रोजाना की बुनियाद पर 50 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का विजिट करेंगी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गिल से जर्मन तरक्याती इदारे के सूबाई कोऑर्डिनेटर की मुलाकात हुई है। GIC के ताउन से जारी मंसूबों का जायजा लिया गया। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान।
हाँ जी बिल्कुल, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गल से जर्मन तरक्याती इदारे GIC के सूबाई कोऑर्डिनेटर की मुलाकात सामने आई है। मुलाकात में GIC के ताउन से जारी मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया गया और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया गया। इस वजह से अवामी शिकायत की फौरी हल के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए GIC की खिदमात अहमियत का हामिल है। आसिया गल का कहना है कि बल्दियाती मुलाजिम की बिल्डिंग कैपेसिटी के हवाले से GIC ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। इसी सिलसिले में म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से अवामी शिकायत की फौरी हल को 100% यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दही तरक्की और खातन को मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी के लिए GIC तजावीज़ तैयार करे, जबकि इसी सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि मॉडल्स विलेज के साथ साथ मॉडल लोकल गवर्नमेंट्स के क़याम के हवाले से भी फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात के हवाले से मॉडल लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए जो दीगर के लिए रोल मॉडल बनेंगी, और इसी सिलसिले में लोकल गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ शोबों में GIC। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। नेपरा के मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद लेस्को में बिलिंग बर वक्त न हो सकी। लेस्को इंतजामिया अपने जारी करदा शेड्यूल पर भी अमल दरामद ना करवा सकी। रवामा भी लेस्को में बैचेस की रेडिंग शेड्यूल के मुताबिक ना हुई। लेस्को रीजन में तमाम बैचेस की रेडिंग ताख़ीर का शिकार। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से मुतअद्दिद हदायत और नोटिस जारी किए गए, मगर इसके बावजूद जो है वो लेस्को में बिलिंग वक्त पर जो है वो नहीं हो सकी। रवा माह भी लेस्को में बैचेस की रीडिंग जो है वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं हुई है। लेस्को रीजन में तमाम बैचेस की रीडिंग ताख़ीर का शिकार है। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ सर्कल्स में इस वक्त बैच 44, 15, 14 और 46 की ताहाल जो है वो हो सकी। लेस्को इंतजामिया अपने जारी करता शेड्यूल पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं करवा सकी। ज़राए के मुताबिक लेस्को शेड्यूल के मुताबिक बैच 14 की रीडिंग जो है वो 21 फरवरी, 15 की जो है वो 22 फरवरी को होना थी। ताहम बिलिंग के बैच 44 की रीडिंग 27 फरवरी और 46 की जो है वो 29 फरवरी को होना थी। लेस्को की मुतअद्दिद सब डिवीजन में आज बैच 14 और 15 की रीडिंग जो है वो ली जा रही है, जबकि शेड्यूल के मुताबिक बैच 14 के सार्फिन को 28 फरवरी को जो है वो बिल मौसूल होना थे। मगर ताहाल नॉर्दर्न, साउथ और सेंट्रल सर्कल में बैच 14 की रीडिंग भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक नेपरा और पावर डिवीजन की जानिब से लेस्को इंतजामिया को बिलिंग शेड्यूल के मुताबिक करने की हिदायत जारी की गई थी, मगर लेस्को की जानिब से रवा माह भी जो है वो इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। दूसरी जानिब जो है वो लेस्को की जानिब से शेड्यूल तो जारी किया जाता है सिर्फ नेपरा को दिखाने के लिए। ताहम जो सार्फिन के बिल हैं उस पर जो है वो आज से कब जो है वो रेडिंग भी दर्ज की जाती थी, मगर अब लेस्को इंतजामिया की जानिब से वो जो है वो सिलसिला भी खत्म कर दिया गया और जो बिजली के बिल हैं उन पर जो है वो रीडिंग की तारीख भी जो है वो दर्ज नहीं की जाती। ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई है। लाहौर में जारी मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से इजलास हुआ है और रोड स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर ब्रीफिंग दी गई है। वफ़द के सूबाई दारुल हुकूमत के मेगा तरक्याती मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। कमिश्नर लाहौर और DG मोहम्मद अली रंधावा से एशियन डेवलपमेंट बैंक के ट्रांसपोर्ट मुलाकात। इस मौके पर एशियन डेवलपमेंट के मुलाकात में लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि सूबाई दारुल हुकूमत में रोड स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए अब तक LDA की तरफ से क्या काविशें की गई हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट मोबिलिटी, माहौलियाती सेहत और अर्बन फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के दौरान वफ्द ने लाहौर के मेगा तरक्याती मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। DG LDA की जानिब से बताया गया कि स्मार्ट मोबिलिटी टर्मिनल्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए कमर्शियल सरगर्मियाँ लानी ज़रूरी होंगी। शहर में सेहतमंद माहौल और सरगर्मियों के फ़रोग के लिए साइकिल कल्चर ट्रेंड पर काफ़ी वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। DG LDA ने माहौलियाती सेहत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स अहदाफ और इंसदाद स्मोक के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। इजलास में वफ्द को शहर में जारी और मुजवजा तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कि 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़ कल से होगा। 1,90,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। पहले रोज़ 7 मज़ामीन का इम्तहान मुनक्किद होगा। 10वीं जमात के इम्तहानात 16 मार्च तक जारी रहेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, कल से जो है 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़ होने जा रहा है और इन इम्तहानात में जो 1,98,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। पहले रोज़ जो है वो 7 मज़ामीन के इम्तहानात जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे। इस हवाले से जो तमाम तर इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल कर दिया गया है। लाहौर बोर्ड की इंतज़ामिया के मुताबिक जो है वो इम्तहानात के बाद दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है और लाहौर डिवीजन में 854 के करीब जो इम्तहानी सेंटर बनाए गए हैं। कल पहली शिफ्ट में 3 पेपर होंगे जिनमें सिविक्स है, इसके साथ साथ बिजनेस स्टडीज है, लिबास और पराचा बानी है, जबकि दूसरी शिफ्ट में तारीख पाकिस्तान, इसके साथ कंप्यूटर हार्डवेयर और गज़ा और गज़ाइयत, पोल्ट्री फार्मिंग के जो मज़ामीन के इम्तहानात दूसरी शिफ्ट में होंगे और पहली शिफ्ट में इम्तहानात का आगाज़ 8:30 से 11 बजे तक होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट का जो इम्तहान है वो 1:30 बजे शुरू होगा और 4 बजे जो इख्तिताम होगा। इस हवाले से जो बोर्ड हुकाम का कहना है कि फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी स्क्वाड जो है वो तैयार जो है तश्कील दिए गए हैं जो तमाम इम्तहानात का विजिट करेंगे। इसके साथ जो ज़िले इंतजामिया के अफसरान हैं वो भी स्कूल इम्तहानी मराकज़ का विजिट करेंगे। तो 1 साल के वक्फे के बाद जो लॉरेंस रोड पर वाक़या मरकजी इम्तहानी सेंटर है वहाँ पर भी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब अदरीस अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तमाम एसपीज़ इन्वेस्टिगेशंस और डीएसपीज़ लीगल की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। एडिशनल आईजी की अदालतों में चालान बर वक्त जमा करवाने की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। पुलिस इजलास में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद, एआईजी मॉनिटरिंग तारिक महबूब, डीएसपी लीगल नासर पंजोता, डीएसपी क्राइम मॉनिटरिंग शेख मुजफ्फर अकरम समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन मुकदमात के जो है वो उस हवाले से बेहतर बनाने के लिए कोई कसर ना उठा रखे। मोहम्मद अजीज का ये कहना था स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के अफसरान ही मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करेंगे। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब की जानिब से कहा गया अदालतों में तफ्तीशी अफसरान मुकदमात बारे पूरी तैयारी के साथ पेश हों। नामजद मुल्ज़िमात के मुकदमात को भरपूर तवज्जो के साथ यकसू किया जाए। एसडीपीओज ऑफिस का रिकॉर्ड मुकम्मल करवाएं और अहम मुकदमात की तफ्तीश की खुद निगरानी करें। अंधे कत्लों के मुकदमात को मुकम्मल यकसू करते हुए जल्द अज जल्द मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, ऐसा कहना था एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस अहमद का। मौसर मैनेजमेंट से तफ्तीशी अफसरान के वर्कलोड को मैनेज किया जाए और अबूरी चलान ज़्यादा से ज़्यादा 17 रोज़ में जमा कराना जरूरी करार दिया गया है। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब मोहम्मद अदरीस अहमद की 13 दफा CRPC 173 के चलान पर वक्त चलान जमा करवाने की भी हदायत की गई। इजलास में तमाम अजला के एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी लीगल बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए और एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब मोहम्मद अदरीस की ज़ेर सदारत सूबे के तमाम एसपी इन्वेस्टिगेशन का ये वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद किया गया था। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान की नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ़रीक़ैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया और ख़बर यह है कि बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान के नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ़रीक़ैन को दलाइल के लिए तलब भी कर लिया है और अहम तरीन ख़बर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान के नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कायदे आज़म एकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरान का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। अफसरान को बच्चों को दी जाने वाली तालीम और तरबियत बारे आगाह किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, कायदे आज़म एकेडमी बराए एजुकेशन डेवलपमेंट तरबियत अफसरान ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी का तालीमी दौरा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद खामोश शहजाद ने एजुकेशन मैनेजर और अफसरान को दायरा की और एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ से
डायरेक्टर शाहिद इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर फोकल पर्सन की सरबराही में 33 अफसरान और एजुकेशन मैनेजर ने लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मुतालियाती दौरे का मकसद पंजाब भर के ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में जाने वाले एजुकेशनल मैनेजर को बच्चों को दी जाने वाली तालीम और तरबियत बारे आगाह करना है। दौरे के दौरान खासा को मुहैया की जाने वाली बच्चों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात, जिसमें ई-आर्ट प्लेटफॉर्म, लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी जो सेक्शन, इसके साथ साथ म्यूजियम, प्लेनेटोरियम, जिम और स्पेशल सेक्शन का दौरा भी करवाया गया। डॉक्टर शाहिद इकबाल ने इख्तितामी खिताब में अहमद खावर शहजाद, मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर की खिदमात को सराहा। दौरे के इख्तिताम पर केंद्रीय लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की तरफ से तमाम हाज़रीन के लिए यादगारी सवीनियर पेश किए गए। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक की आमद में चंद रोज़ बाकी महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। सब्जियां, फल और अशय खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां और 3 फल मज़ीद महंगे कर दिए गए। मुर्गी का गोश्त 17 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 602 रुपये होगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। यूरिया की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो मंडियों और परचून बाज़ारों में सब्जियां, फल और दीगर अशया ज़रूरिया या अशया खुरोनोश जो हैं इनकी कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। रमज़ानुल मुबारक को चंद दिन रह चुके हैं और कीमतें जो हैं वो कंट्रोल होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। आज की सरकारी रिलीज़ की बात की जाए तो 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें प्याज 15 रुपये महंगा करके 180 रुपये, इसी तरह लहसुन 25 रुपये महंगा करके 540 रुपये और अदरक 10 रुपये इजाफे के बाद 575 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। सब्ज़ में 10 रुपये महंगी करके 255 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। बैगन 6 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये, करेले 15 रुपये इजाफे के बाद 340 रुपये, जबकि फूल गोभी 5 रुपये महंगी करके 70 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। मटर 4 रुपये महंगे करके 78 रुपये मुकर्रर की गई है। ये सरकारी रिलीज़ की कीमत है और शहर की सब्ज़ मंडियों और परचून बाज़ारों में हर दुकानदार का रेट जो है वो अलग है, जो कि सरकारी रिलीज़ से ज़ायद ही वसूल किया जा रहा है। 3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। ब्रायलर की कीमत कम की गई है, लेकिन ब्रायलर अब भी लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। 17 रुपये कमी के बाद 602 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा है। अंडे 2 रुपये महंगे करके 243 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक को 10 दिन रह गए हैं और सूरत हाल क्या है अशिया खुरोनोश की कीमतों की? जी दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है लगातार। हम डेली आते हैं, सामान डेली इंक्रीज़ होता जा रहा है, कोई कीमतों में कमी नहीं आ रही। रमज़ान जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मंडी में एक रेट किसी का भी नहीं है, कोई अपनी मर्ज़ी से कोई। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।